میرا نام ریحانہ ہے۔ میرا تعلق مظفر گڑھ کے ایک نواحی گاؤں سے ہے۔ میں 4 سال کی تھی جب اماں مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئیں۔ اماں کو دنیا سے گئے کچھ ماہ ہی ہوئے تھے جب ابا نے دوسری شادی کر لی۔ پھپھو بھی گھر پر تھی۔ انہوں نے ابا سے کہا تھا کہ سوچ کر فیصلہ کرنا دوسری شادی کا، کل کو دوسری عورت آپ کی بیٹی کو نہیں سنبھالے گی۔ لیکن ابا نے کہا میں ہوں، خود رکھ لوں گا اپنی بیٹی کا خیال۔ میری سوتیلی ماں شروع کے دنوں میں میرے ساتھ اچھی رہی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میری سوتیلی ماں مجھے بات بات پر مارتی، میں بھوک سے روتی رہتی۔ صحیح کہتے ہیں، ماں تو وہی ہے جس نے جنم دیا ہوتا ہے، سوتیلی مائیں تو قسمت والوں کی اچھی ہوتی ہیں۔ میرے نصیب تو اسی دن سے خراب ہونے شروع ہو گئے تھے جب میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ میری سوتیلی ماں نے آتے ہی ابا کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ ان کی پھپھو سے بھی نہیں بنتی تھی، اسی لیے روز روز اماں اور پھپھو کا جھگڑا رہنے لگا۔ میری سوتیلی ماں نے ابا سے کہا کہ وہ ایک ہی صورت میں یہاں رہیں گی اگر وہ اپنی بہن کی شادی کر دیں، کیونکہ اماں جو کرتی تھیں پھپھو ان کو آڑے ہاتھوں لیتی تھی۔ اسی لیے اماں چاہتی تھی کہ ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، وہ اپنی من مرضی کریں۔ پھر پھپھو کی شادی کر دی گئی۔ اس کے بعد پھپھو کبھی گھر نہیں آئی تھی۔ ابا تو دوسری شادی کے بعد یہ بھول ہی گئے کہ ان کی پہلے سے ایک بیٹی ہے۔ میرے 2 سوتیلے بہن بھائی تھے۔ میری سوتیلی ماں ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہتی، لیکن مجھے کبھی نہیں دیکھا، نہ پوچھا کہ کس حال میں ہوں۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے اپنی اور اپنے بچوں کی خدمت کرواتی۔ میں 10 سال کی ہو چکی تھی لیکن ابھی تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ ابا تو مجھ سے ایسے غافل ہوئے کہ مجھے اسکول داخل کروانا بھی انہیں یاد نہ تھا۔ میری سوتیلی ماں نے ایک دن صبح سویرے مجھے دکان پر انڈے لانے کے لیے بھیجا۔ اس وقت سب بچے اسکول جا رہے تھے۔ میں نے گھر آ کر اپنی سوتیلی ماں سے کہا، اماں میں اسکول کب جاؤں گی؟ تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی گالی دی ہو۔ وہ کہنے لگی، بہت شوق ہے اسکول جانے کا، تو اسکول جائے گی تو گھر کے کام تیرا باپ کرے گا، چل جا کے کپڑے دھو اور گھر صاف کر۔ میں روتی ہوئی سارا کام کرتی رہتی۔ دادی بیمار تھی، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، انہیں سب کچھ بتاتی کہ ابا کی دوسری بیوی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، سارا دن مجھ سے کام کرواتی ہے اور رات کو کھانا بھی اپنے بچوں کا بچا ہوا دیتی ہے۔ اگر میں اتنا کہہ دوں کہ اماں میں سارا دن کام کرتی ہوں، کھانا تو اچھا دے دیا کریں، تو آگے سے مجھے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے تم میرا اتنا احسان مانو جو ابھی تک تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے۔ دادی میری باتیں سن کر روتی، وہ بول نہیں سکتی تھی، ان کو فالج تھا۔ دادی کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن میری سوتیلی ماں نے ابا سے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اسی لیے علاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ابا بھی وہی سنتے اور دیکھتے تھے جو میری سوتیلی ماں انہیں دکھاتی اور کہتی۔ اگر ابا خود ڈاکٹر سے بات کرتے، دادی کو دکھاتے، تو آج دادی بالکل ٹھیک ہوتی۔ ایک دن ابا باہر کسی دوست کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں ایسے ہی دروازہ کھلا دیکھ کر بند کرنے گئی تو سامنے میرا چھوٹا بھائی ابا کے کمرے میں الماری سے کچھ چرا کر بھاگنے لگا۔ سامنے مجھے دیکھ کر شور مچانے لگا کہ اماں ابا آ کر دیکھو، آپا چوری کر رہی ہے آپ کے کمرے سے۔ اس نے چرائے ہوئے پیسے میرے ہاتھ میں رکھ کر میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اماں نے آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا اور ابا کو بھی بلا لیا۔ ابا نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا تم میری بیٹی ہو کر اتنی گری ہوئی حرکت کرو گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تمہاری ماں نے کس چیز کی کمی آنے دی تمہیں جو تمہیں پیسے چوری کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے کہا، ابا آپ میری بات تو سن لیں۔ لیکن ابا نے کہا، سننے کو اور رہ ہی کیا گیا ہے۔ میری سوتیلی ماں نے ابا سے کہا، آج دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے کرتوت۔ ابا نے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی، یہ بہت بگڑ چکی ہے۔ میں نے کہا، ابا آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ ہوا کیا تھا؟ ابا نے کہا، چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تمہیں پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگتی، یوں پیسے چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمہارے چھوٹے بہن بھائی کیا سیکھیں گے تم سے؟ کیا اثر لیں گے تمہاری حرکتوں کا؟ میں پیسے وہیں پھینک کر روتی ہوئی دادی کے کمرے میں آ گئی۔ میرا اپنا تو کوئی بھی نہ تھا جو مجھے سمجھتا اور میرا دکھ بانٹتا۔ دادی کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ میں نے دادی کا ہاتھ پکڑا تو وہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ ابا اماں کو آوازیں دیں کہ دادی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ابا دوڑے آئے، ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا دادی کا انتقال ہو چکا ہے، اور دادی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک دادی ہی تو تھی جس سے میں ہر بات کرتی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن اتنا تو تھا میں ان سے اپنے دل کا حال کہہ لیتی تھی۔ میری سوتیلی بہن محلے میں کسی دوست کی شادی پر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن ریحانہ کو ساتھ لے جا، وہ تیرے ساتھ ہوگی تو مجھے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ میں تجھے اکیلے نہیں بھیج سکتی۔ اماں نے مجھے آواز دی، او ریحانہ ادھر اپنی بہن کے ساتھ چلی جا، لیکن سن اس کا خیال رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا، اماں یہ اب بچی تو نہیں ہے، یہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، پھر مجھے ساتھ کیوں بھیج رہی ہیں؟
अम्मा ने कहा, बहुत जबान चलती है तेरी, जितना कहा जाए उतना किया कर, तुम्हें सिर्फ सुनने की इजाजत है, सवाल करने की नहीं। फिर मैं अपनी बहन के साथ उसकी दोस्त की शादी पर चली गई। रात बहुत हो चुकी थी। मैंने उसे कितनी बार कहा कि अम्मा इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरी बहन नहीं मानी और रात के 11 बजे हम घर गए। घर पहुंची तो अब्बा सामने सहन में ही बैठे हमारी राह देख रहे थे। मेरी बहन फौरन कमरे में चली गई और अब्बा ने मुझे रोक लिया। अब्बा ने कहा, किससे पूछकर घर से बाहर गई थी? तुम तो बड़ी हो, तुम्हें चाहिए कि अपने छोटे बहन भाइयों को समझाओ, उल्टा तुम खुद उनको लेकर इतनी इतनी देर तक घर से बाहर रहती हो। मैंने कहा, अब्बा मैं जाना नहीं चाहती थी, अम्मा ने खुद भेजा था। और तभी अम्मा, जो मेरी सौतेली माँ थी, वो भी आ गई और कहने लगी, तौबा तौबा, कितने झूठ बोलती है, मैं क्यों जवान लड़कियों को किसी पराई शादी में अकेले भेजूंगी। फिर अम्मा ने अब्बा से कहा, अभी कह रही हूँ, अपनी बेटी को समझा लें, अगर मैं कुछ कहूंगी तो सब मुझे इल्जाम देंगे कि सौतेली माँ है इसलिए बेटी पर जुल्म करती है। मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ, लड़की के खुद के काम अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा, अम्मा आप झूठ बोल रही हैं, आप जानती हैं मैं घर से बाहर नहीं जाती। आप छोटी को बुलाकर पूछ लें, वो बताएगी कि मुझे अम्मा ने उसके साथ भेजा था। अम्मा ने कहा, अच्छा ये बात है, चलो तुम्हारा ये शौक भी पूरा किए देती हूँ। अम्मा ने मेरी छोटी बहन को बुलाया और अब्बा से कहा, लो खुद ही तसल्ली कर लो, पूछो इससे किसने भेजा था शादी पर। अब्बा ने जब मेरी बहन से पूछा कि तुम्हारी माँ ने इजाजत दी थी बेगानी शादी पर अकेले जाने की, उसने कहा, नहीं अब्बा, आप ही झूठ बोल रही हैं। उसने कहा था कि अम्मा को पता नहीं चलना चाहिए, मुझे भी साथ ले गई। अम्मा ने कहा, बस हो गई तस्दीक या कुछ और भी पूछना है? मैं सख्ते की कैफियत में अपनी बहन को देख रही थी। अब्बा ने मुझे कहा, आज के बाद अगर तुम घर से बाहर गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं रोती हुई कमरे में चली गई। इतना कुछ हुआ था, लेकिन अब्बा ने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी, कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, और आज भी मेरी सौतेली माँ जीत गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन भी मेरे साथ मुनाफकत कर रही है। मुझे अब समझ आया था कि माँ ने इसीलिए मुझे साथ भेजा था। जब अब्बा पूछेंगे तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देंगी और खुद हमेशा की तरह अपने आप को अब्बा के सामने अच्छी साबित कर देंगी। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी। मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैं कुछ करती भी नहीं और कसूरवार मुझे ठहराया जाता है। कुछ दिनों से मुझे अपनी बहन पर शक हो रहा था कि उसके पास मोबाइल है। मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं ये कोई गलत काम ना कर बैठे। मैं अपनी बहन को समझाना चाहती थी कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे अब्बा का सर शर्म से झुक जाए। जब उसके कमरे में गई तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा, देखो छोटी, तुम जो कर रही हो ये सही नहीं है। उसने कहा, आप अपने काम से काम रखें, मैं अच्छा बुरा समझती हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। अकेले बैठकर सोचती रहती कि मेरी भी क्या जिंदगी है। बचपन से लेकर अब तक जिनकी खिदमत करती रही, आज वही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। मेरी सौतेली बहन, जिसे इतने प्यार से उठाए फिरती थी, वो आज अम्मा की तरह अपनी सारी कोताहियां और काम मुझ पर डालती है। अब्बा मुझे कहते रहते हैं कि तुम ऐसी हो इसलिए तुम्हारे छोटे बहन भाई भी तुम जैसे बन गए हैं, जबकि मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब्बा ऐसे क्यों थे? वो किसी पर इतना अंधा एतबार कैसे कर सकते थे? और एतबार भी ऐसा अंधा कि बेटी की बात सुनने समझने की जरूरत ही महसूस नहीं की। मैंने जब जब अब्बा से कुछ कहना चाहा, मेरी सौतेली माँ उसी वक्त मुझे अब्बा से दूर कर देती, किसी न किसी काम में उलझा देती कि कहीं ये अपने बाप से हमारे बारे में कोई बात ना कर दे, और इसका बाप अगर इसकी सुनने लगा तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। इसलिए वो कुछ ऐसा करती जिससे अब्बा मुझसे दूर होते गए, और इतने दूर हो गए कि सामने होते हुए भी मैं उनको नजर नहीं आती थी। एक दिन कपड़े धो रही थी जब मेरी बहन तेजी से मेरे पास से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ती छत पर चली गई। अम्मा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनकी बेटी क्या करती फिर रही है। उनका बस सिर्फ मुझ पर चलता था। मुझे अपनी बहन के इस तरह तेजी से छत पर जाने से उस पर शक हुआ। उसके पीछे ही मैं छत पर चली गई। वो किसी को हाथ हिलाकर इशारे से कुछ कह रही थी। मैंने कहा, छोटी, यहाँ क्या कर रही हो और ये हाथ किसे हिला रही हो? मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसे पसीने आने लगे। उसने कुछ घबराते हुए कहा, आप ही कुछ नहीं, मैं वो नीचे बच्चे खेल रहे थे उनको हाथ हिला रही थी। वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। इतना कहकर वो छत से नीचे चली गई। मैं भी उसके पीछे ही सीढ़ियां उतरने लगी जब मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मेरे सर पर चोट लगी थी, मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो सर में शदीद दर्द था। मैं रोने लगी जब अम्मा के बोलने की आवाज आई। वो इस वक्त भी मुझे डांट रही थी कि मैं उनकी बेटी की जासूसी कर रही थी, इसलिए मुझे इसकी सजा मिली है। मैं रोते रोते सो गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। मैंने अपना वहम समझकर झटक दिया और तवज्जो न दी। इसी तरह काम करती रहती। एक दिन खाना बनाते हुए अचानक मुझे नजर आना बंद हो गया। शायद गर्मी की वजह से पसीना आंखों में चला गया था, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ देर में अपनी आंखें मलती रही, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
मैं रोने लगी और अम्मा को आवाज़ें देने लगी। वो मुझे कोसती हुई आई कि क्या मुसीबत है, क्यों गला फाड़ रही हो, जिंदगी मुश्किल कर दी है तुमने हमारी। मैंने कहा अम्मा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अम्मा हंसने लगी और कहने लगी कि ये अच्छा बहाना ढूंढा काम ना करने का। मैंने रोते हुए कहा अम्मा मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपकी कसम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा ने कहा बस बस, मेरी कसम उठाने की जरूरत नहीं, आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारो, ठीक हो जाओगी। अम्मा मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई, पानी के छींटे भी मारे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अम्मा मुझे गांव में एक डॉक्टर जो 3-4 घंटे के लिए अपने क्लिनिक पर बैठता था उसके पास लेकर जाने लगी। जब आगे से अब्बा भी आ गए, अब्बा ने मुझे देखकर कहा क्या हुआ है रेहाना को, ये रो क्यों रही है। अम्मा ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इसको तो आदत है छोटी सी बात पर रोने की। आप अंदर जाएं, मैं इसे डॉक्टर को दिखा कर लाऊं। अब्बा ने कहा नहीं तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। अब्बा मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। उसने कहा जब इस बच्ची के सर पर चोट लगी थी मैंने तभी कहा था कि इसे आग और धूप में नहीं जाने देना, क्योंकि मुझे इस बात का खदशा था, लेकिन आपने मेरी बात को संजीदा नहीं लिया। अब्बा ने कहा क्या मतलब, क्या हुआ है मेरी बेटी को। डॉक्टर ने कहा इसकी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, अब आपकी बेटी को ऐनक लगेगी, इससे ये साफ देख सकेगी। अब्बा परेशान हो गए। फिर अब्बा ने डॉक्टर से पूछा आपने किससे कहा था एहतियात करने का। डॉक्टर ने कहा आपकी बीवी एक दिन यहाँ दवा लेने के लिए आई थी, तब उनसे मैंने आपकी बेटी का पूछा था और कहा था कि इस बच्ची का मुकम्मल ख्याल रखें, बेटी का मामला है, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। और देख लें आज बच्ची बेचारी किस मुसीबत में पड़ गई है। फिर अब्बा मुझे लेकर घर पहुंचे तो अम्मा ने मुझे ऐनक लगाए देखा तो कहने लगी बस, मैंने कहा था ना ये नाटक कर रही है, इसे ऐनक का शौक चढ़ गया था और इसीलिए ये सब ड्रामा रचाया और ऐनक लगवा ली। अब्बा ने गुस्से से अम्मा की तरफ देखा और कहा ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। रेहाना की नज़र कमज़ोर हो चुकी है, ये अब ऐनक के बिना साफ नहीं देख सकती। जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया था सब, फिर तुमने रेहाना का ख्याल क्यों नहीं रखा। अम्मा ने कहा डॉक्टर झूठ बोलता है, मुझसे उसने कुछ नहीं कहा। अब्बा ने कहा बस करो, जाओ और रेहाना के लिए खाना लाओ, फिर इसे दवा दो। अब्बा ने मुझे कहा रेहाना तुम कमरे में जाओ। आज पहली बार अब्बा ने मुझसे ऐसे नर्म लहजे में बात की थी। मेरी सौतेली माँ से अब्बा का मेरे लिए फिक्रमंद होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो जल्द अज जल्द मेरी शादी करके मुझे घर से निकालना चाहती थी। इसलिए मेरे लिए रिश्ता देखा और चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। मैं देहात की एक पेंडू और अनपढ़ लड़की थी, आज शहर रुखसत हो रही थी। दुल्हन बनी तो पार्लर वाली ने चश्मा ना लगाने दिया, हालांकि बगैर चश्मे के मुझे कुछ नजर ना आता, मैं ठीक से कुछ भी नहीं देख पा रही थी और रुखसत होकर ससुराल पहुंच गई थी। मेरा शौहर कमरे में आया और सारी रात मेरे साथ रहा, लेकिन अगले ही दिन मेरी सास ने मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगाया और मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया कि रात मेरा कोई आशिक मेरे साथ कमरे में था। मैं रोती हुई घर वापस आ गई और कुछ ही दिनों में हामला हो गई, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चा मेरे शौहर का था। अब्बा ने फौरन मेरी सास जो कि मेरी फुप्पो थी उन्हें बुलाया और इस बात का मुझे बाद में पता चला कि मेरी शादी फुप्पो के बेटे से हुई थी। अब्बा ने फुप्पो को फ़ोन किया और कहा जो भी बात है आमने सामने बैठ कर करो, यूं मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने, अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं थी तो उसका रिश्ता क्यों लिया तुमने। लेकिन फुप्पो ने घर आने से इनकार कर दिया। अब्बा मुझे लेकर फुप्पो की तरफ चले गए। वहां जाकर अब्बा ने फुप्पो से कहा बताओ क्या बात है, ऐसी कौन सी नफरत है तुम्हारे दिल में जिसकी वजह से तुमने इतने सालों अपने भाई से राब्ता नहीं किया और फिर अचानक मेरी बेटी ही ब्याह कर ले गई और इतना घटिया इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। फुप्पो ने कहा काश ये बात आप उस दिन पूछते जब जबरदस्ती मेरी शादी की थी, आप अच्छी तरह जानते थे मैं किसी और को पसंद करती थी, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया बल्कि अपनी बीवी की बात मानी। इसी वजह से मैंने कसम खाई थी कि आपके दरवाजे पर तभी आऊंगी जब मेरा बेटा होगा और उसकी शादी आपकी बेटी से करके अपना बदला लूंगी। अब्बा ने फुप्पो से कहा अफसोस, मेरी बहन इतनी गिरी हुई सोच रखती है कि अपने ही खून को दागदार करने पर तुल गई। फिर अब्बा ने कहा जिससे तुम शादी करना चाहती थी वो अच्छा इंसान नहीं था। जब तुमने मुझसे बात की मैंने छानबीन शुरू कर दी थी उस आदमी के बारे में। जब मुझे पता चला कि वो आदमी जिससे तुम शादी करना चाहती थी वो तो लड़कियों को वरगला कर ले जाता है और आगे बेच देता है, और जानती हो वो आदमी कहाँ है, वो अब जेल में है। मैंने जो किया वो सब तुम्हारे भले के लिए किया, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा और सारी जिंदगी नफरत पालती रही। अब्बा की बातें सुनकर फूफो का सर झुक गया। अब्बा ने कहा तुम्हें मुझसे मेरी बेटी से नफरत है तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, तुम जो चाहे फैसला करो, मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं। फिर अब्बा मुझे लेकर घर आ गए। अम्मा ने मुझे देखते ही अब्बा से कहा इस गुनाह को फिर अपने साथ ले आए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसे अभी निकालो घर से। अब्बा ने अम्मा से कहा अपनी बकवास बंद करो, ये मेरा घर है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। ये घर मेरी बेटी का है, ये चाहे सारी उम्र यहाँ रहे, किसकी हिम्मत है जो उसे यहाँ से निकाले। अम्मा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं।
अब्बा ने अम्मा की सारी बातें सुन ली थी। जो कुछ अम्मा मेरे साथ करती रही वो सब खुश होकर वो मेरी छोटी बहन को बता रही थी, और अब्बा के आने का अम्मा को पता नहीं था। फिर अब्बा समझ चुके थे कि उन्होंने मेरे साथ कितनी नाइंसाफी की थी। अब्बा ने कहा, तुमने रेहाना के बचपन से लेकर अब तक जो किया मैं सब जान चुका हूँ। तुमने तो कभी मेरी बेटी को माँ का प्यार दिया ही नहीं, हमेशा उसके साथ दुश्मनी रखी और इस तरह की चालें चली कि मुझे मेरी बेटी से ही दूर कर दिया। हमारे दरमियान इतनी नफरत डाल दी कि मुझे सच और झूठ में फर्क नजर नहीं आया। मेरी बेटी का बचपन, उसके खेलने के दिन जिनको तुमने अपनी सौतेली ममता पर कुर्बान कर दिया, वो वापस नहीं आ सकते। मेरी बेटी मेरे होते हुए भी यतीमों वाली जिंदगी गुजारती रही। मैं कितना जालिम बाप था, कितना अंधा था जो तुम जैसी मक्कार औरत पर भरोसा कर बैठा और अपनी बेटी की आवाज को कभी सुन ही नहीं सका। अम्मा ने रोना शुरू कर दिया और अब्बा से कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, रेहाना ने कान भरे हैं आपके मेरे खिलाफ। अब्बा ने कहा, बस करो, और कितना गिरोगी तुम तो औरत के नाम पर धब्बा हो। इससे पहले कि अब्बा कुछ और कहते, अम्मा बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन फुप्पो मेरे शौहर को लेकर हमारे घर आ गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। फुप्पो ने अब्बा से कहा, मैंने जो किया वो सब गलत फहमी में हुआ, मैं रेहाना को अपने साथ घर ले जाने के लिए आई हूँ। फुप्पो ने मुझसे माफी मांगी और मेरे शौहर ने भी, जो सब जानते हुए भी खामोश थे। मेरे शौहर ने कहा, मैं मजबूर था अपनी माँ की वजह से, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे अपने शौहर को माफ करना था, क्योंकि जब रिश्तों को निभाना हो तो दिल बड़ा करना पड़ता है। मैं अब अपने घर में बहुत खुश थी। फुप्पो और मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी सौतेली माँ, जिनकी वजह से सगे रिश्तों में नफरत और गलत फहमियाँ आई थीं, वो अब चारपाई पर थी। और मेरी छोटी बहन, वो किसी लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का उसे धोखा दे रहा था। अल्लाह का शुक्र जो मेरी बहन को सब वक्त पर मालूम हो गया और उसने घर की दहलीज पार नहीं की। मेरी बहन ने अपने किए की मुझसे माफ़ी मांगी। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन उनके निशान बाकी रह जाते हैं। मैंने माफ़ तो कर दिया था, लेकिन वक्त और हालात ने जो कुछ मेरे साथ किया था वो कभी भूल नहीं सकी थी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। अल्लाह ताला ने मुझे एक चांद से बेटे से नवाजा। उसके आ जाने से मैं पिछले दुखों को पीछे छोड़ आई हूँ।